Today, we're diving into a really important piece of legislation from 1996. It's called the Building and Other Construction Workers Act, and you can think of it as a blueprint for protecting the very people who build our country. You know, every time you see a skyscraper, a new bridge, or a massive dam, it's a monument to incredible human effort. But let's be real, that kind of work is dangerous. So it brings up a huge question. For the millions of people building our modern world, who's building a framework of safety and security for them? So to really get why this act is such a game changer, we first have to understand the world it was designed for. The construction industry in India is absolutely massive. It's an engine for jobs and for the economy. But there's a flip side to that coin. It is, without a doubt, one of the riskiest industries to work in. You've got people working at dizzying heights, handling heavy machinery, dealing with hazardous stuff. This mix of huge scale and high danger is exactly why strong legal protections aren't just a nice to have, they're critical. So how do you even begin to tackle a challenge that big? Well, the answer came in the form of this landmark law. Back in 1996, this incredibly comprehensive law was put into place. Honestly, the best way to think about it is as a legal safety net woven specifically to catch and support construction workers. Its main jobs? To regulate how people are employed, to make job sites safer, and to offer a whole range of welfare benefits. So who exactly is this safety net for? Well, the Act defines a building worker in a really broad way. It covers pretty much everyone, skilled, semi-skilled, unskilled, whether they're doing manual labor, technical work, or even clerical tasks on site. But just as important is who it leaves out, people in high-level managerial or administrative jobs. This makes sure all the protections are laser-focused on the folks on the front lines. Now, you can't just pass a law and hope for the best. You need a system to make it work. So you've got advisory committees that give guidance to the government and expert committees for the really technical stuff. But the real heart of the operation, that's the state welfare boards. They are the ones on the ground, managing the money and making sure the benefits actually get to the workers. Okay, let's get down to the nitty-gritty. What does this act actually change on a day-to-day basis at a construction site? This right here is the core principle. The Act makes it crystal clear. We're not talking about suggestions or best practices. These safety measures are the law. They are non-negotiable requirements that every single employer has to follow, period. And the law lays out a very specific to-do list for employers. First, they absolutely must provide all the necessary protective gear. All the heavy machinery, especially things like cranes, has to be properly tested and certified before it's ever used, and then checked again regularly. For bigger sites with 500 or more workers, a dedicated safety officer is mandatory. And if a serious accident does happen, it has to be reported to the authorities right away. And look at how specific these rules get. The law doesn't just say provide gear, it gets into the details. For everyday work, helmets and safety shoes are a must. Working in the rain, the employer has to give you a waterproof coat and hat. Slogging through wet concrete, you get waterproof boots. This level of detail is so important because it leaves no room for excuses. But, you know, being protected is about more than just physical safety. This act also built a really powerful system for financial and social support. So, where does the money for all this come from? Well, this is where it gets really clever. It's funded by something called the welfare cess. Basically, it's a small tax that's added to the total cost of any construction project. The employer pays it, and that money goes into a dedicated, protected fund that can only be used for the workers' welfare. And this number might just be the most important detail in the entire system. Why? Because the law states that a maximum of only 5% of all that money collected can be used for administrative costs, running the office, salaries, that kind of thing. This is a brilliant safeguard. It ensures that at least 95% of every single rupee goes directly into benefits for the workers. So what kind of benefits are we talking about? Things that can genuinely change lives. The fund can provide immediate cash assistance if there's an accident. It helps pay for workers' kids to go to school. It covers medical bills.
It gives maternity benefits to female workers. And, so importantly, it provides a pension after the age of 60, giving them a real safety net in their later years. Of course, any law is just words on a page if you can't enforce it. So let's look at the mechanisms that give this act its teeth. To make sure the rules are being followed, the act created a role for government-appointed inspectors. These officials have the legal power to walk onto any construction site at any reasonable time to do inspections, look at records, and talk to workers to make sure everything is up to code. And if an employer is caught breaking the rules, well, there are very clear consequences. For a first offense, it could mean up to 3 months in prison, or a fine, or both. But if that same employer gets caught again, the penalties get steeper, up to 6 months in jail. It shows there's no patience for repeat offenders. And to make sure the inspectors can actually do their jobs, the law makes it a serious crime to get in their way. If you deliberately try to hide records from an inspector or stop them from doing their job, you could face jail time or a fine yourself. This protects the entire enforcement system. So, there you have it, the 3 main pillars of this act: mandatory safety on site, real welfare support, and tough enforcement. The blueprint for protection is solid, it's strong. But the big question that remains, the real challenge, is how we take this blueprint and make sure it's actually built into the foundation of every single worksite across the country. सोचिए जरा, हमारे आसपास जो ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, आखिर इन सबको बनाता कौन है? तो आज हम समझने वाले हैं 1996 के उसी ऐतिहासिक कानून को जो इन्हीं बनाने वालों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग हमारी दुनिया बना रहे हैं, उनकी हिफाजत, उनकी रक्षा कौन करता है? और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, भारत का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ये लाखों लोगों को काम तो देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन ये काम अक्सर काफी खतरनाक भी होता है। ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर गहरी सुरंगों तक रिस्क तो हर जगह है। तो फिर इन मजदूरों की हिफाजत के लिए क्या सिस्टम है हमारे पास? चलिए अब इस कानून की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। मतलब ये कानून असल में प्रोटेक्ट किसे करता है? इसका जो दायरा है ना, वो शायद काफी लोगों को हैरान कर दे। तो कानून की नजर में एक बिल्डिंग वर्कर या निर्माण श्रमिक का मतलब सिर्फ मजदूर या मिस्त्री नहीं होता। नहीं, इसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल वर्कर तो हैं ही, साथ में टेक्निकल लोग, यहाँ तक कि क्लेरिकल काम करने वाले, यानी साइट पर काम करने वाला क्लर्क, वो भी शामिल है। बेसिकली हर वो इंसान जो किसी न किसी तरह से कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ा है। और हाँ, बात सिर्फ घर या बिल्डिंग्स बनाने तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कानून तो पुल, बांध, सड़कें, सुरंगें, बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस, इवन पाइपलाइन बिछाने जैसे बड़े बड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर लागू होता है। मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश के डेवलपमेंट की जो नींव रखता है ना, वो हर वर्कर इस कानून के अंदर आता है। तो ठीक है, इन मजदूरों की सेफ्टी के लिए 1996 में सोल्यूशन क्या निकाला गया? ये कोई एक सिंगल रूल नहीं था, बल्कि ये एक, कह सकते हैं कि बहुत ही स्मार्टली डिजाइन की हुई 2 पार्ट प्लानिंग थी, एक 2 हिस्सों वाली योजना। इस कानून की सबसे खास बात पता है क्या है? इसका डुअल स्ट्रक्चर। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है वेलफेयर एक्ट, यानी कल्याण अधिनियम। इसका काम है सेफ्टी और हेल्थ के सारे नियम, सारे रूल्स बनाना। और दूसरा है सेस एक्ट, यानी उपकर अधिनियम। इसका काम है इन नियमों को लागू करने के लिए पैसा इकट्ठा करना। तो समझे, एक हिस्सा रूल्स बनाता है और दूसरा हिस्सा उसके लिए फंडिंग का इंतजाम करता है। शानदार है ना? लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए पैसा यानी फंडिंग आती कहां से है? चलिए अब इस सिस्टम की फंडिंग को ही ठीक से समझते हैं। इसका जवाब है एक छोटा सा सेस। ये एक तरह का टैक्स है। हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट होती है ना, उसका सिर्फ 1 से 2% हिस्सा इस फंड में डाला जाता है। सोचिए, सिर्फ 1 से 2%, और यही छोटी सी रकम इस पूरे वेलफेयर सिस्टम की बुनियाद है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है? प्रोसेस बड़ा आसान है पर बहुत ही इफेक्टिव। देखिए, स्टेप 1, प्रोजेक्ट की कॉस्ट से सेस कलेक्ट किया जाता है। स्टेप 2, ये पैसा सीधा स्टेट के वेलफेयर बोर्ड के पास ट्रांसफर हो जाता है। स्टेप 3, फिर ये बोर्ड जो एलिजिबल वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करता है। और आखिर में स्टेप 4, हर रजिस्टर्ड वर्कर को एक ऑफिशियल आईडी कार्ड मिलता है। ये कार्ड उनके अधिकार का, उनके हक का सबूत होता है। तो इस तरह से एक छोटा सा टैक्स एक वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी का एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तो ये तो हो गई सारी कागजी कार्रवाई की बात, सिस्टम कैसे काम करता है, फंडिंग कहाँ से आती है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक वर्कर के लिए जो एक्चुअल में साइट पर काम कर रहा है, उसके लिए इन नियमों का ग्राउंड पर क्या मतलब है, रियल लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज, सेफ्टी।
साइट पर मौजूद हर एक इंसान के लिए सेफ्टी हेलमेट और मजबूत जूते पहनना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये एक छोटा सा नियम लग सकता है, पर ये जान बचा सकता है। अब आते हैं हैवी मशीनरी पर। कानून ये कहता है कि क्रेन और विंच जैसी जो भी लिफ्टिंग मशीन्स हैं, उनको यूज करने से पहले उनकी ठीक से जांच और सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। ऐसा क्यों? ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर छोटी मोटी चोटें लगना काफी आम बात है। इसीलिए कानून ये भी सुनिश्चित करता है, ये भी पक्का करता है कि हर साइट पर एक फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा अवेलेबल हो, ताकि अगर कोई चोट लगे तो फौरन इलाज मिल सके। और इससे ये भी पता चलता है कि ये कानून कितनी छोटी छोटी बातों का, कितनी बारीकियों का ध्यान रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश में काम हो रहा है या गीले कंक्रीट के साथ काम करना है तो वर्कर्स को वाटरप्रूफ जूते और कोट देना जरूरी है, ये अनिवार्य है। ठीक है, एक अच्छा कानून बना देना तो एक बात है, पर उसे जमीन पर लागू करवाना, उसे इम्प्लीमेंट करवाना, वो असली चैलेंज है। तो आइए देखते हैं कि ये कानून अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही कैसे फिक्स करता है। ये जो कोड है, ये इस कानून की असली पावर दिखाता है। इसके मुताबिक जो सरकारी इंस्पेक्टर होते हैं, उनको पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि वो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और कोई भी रजिस्टर या डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। और यही वो तरीका है जिससे ये पक्का किया जाता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। तो अगर हम इस सबको सम अप करें तो इस कानून का बड़ा मकसद, इसकी ग्रैंड एम्बिशन क्या है? पहला, एक बहुत बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स को एक पहचान देना, उसे फॉर्मलाइज करना। दूसरा, एक डेडिकेटेड टैक्स के जरिए सोशल सिक्योरिटी फंड करना। तीसरा, हर एक साइट पर सेफ्टी और वेलफेयर को कंपल्सरी बनाना और उसे लागू करवाना। और शायद सबसे जरूरी, एम्प्लॉयर्स की यानी मालिकों की जवाबदेही तय करना। तो देखिए, कागज पर तो ये कानून एक बहुत ही पावरफुल ब्लूप्रिंट, एक मजबूत खाका पेश करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीन पर, रियलिटी में इस ब्लूप्रिंट को कितनी अच्छी तरह से बनाया जा रहा है। 1996 से लेकर अब तक उन लाखों वर्कर्स के लिए जो आज भी इसी वक्त हमारी दुनिया बना रहे हैं, ये खाका उनकी जिंदगी में कितना बदलाव ला पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे शहरों में जो ये बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। और आसमान को छूती हुई जो गगनचुंबी इमारतें हैं, या मीलों लंबा मेट्रो का काम चल रहा है, जब भी हम इन सबको देखते हैं ना, तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ईंट, सीमेंट और स्टील का एक बड़ा सा पहाड़ है। हाँ, एक आम इंसान को तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल ही लगता है। सही कहा। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इस धूल और शोर के पीछे का एक बहुत ही अलग सच सामने लाने वाले हैं। मतलब अगर गहराई से देखा जाए तो ये सारी विशाल इमारतें सिर्फ कंक्रीट पर नहीं, बल्कि एक बेहद जटिल, मजबूत और हैरान कर देने वाले कानूनी ढांचे पर खड़ी हैं। और ये कानूनी ढांचा असल में उन मजदूरों की जान बचाता है जो इस कंक्रीट के जंगल को खड़ा करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी कानूनी जाल को सुलझाने वाले हैं। हम भारत में निर्माण श्रमिकों यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अधिकारों, उनके करोड़ों रुपए के कल्याण कोष और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े उन कड़े नियमों को डिकोड करेंगे जो आमतौर पर फाइलों में ही दबे रह जाते हैं। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही प्रामाणिक स्रोत हैं। हाँ, हमारे पास सरकारी पोर्टल माई स्कीम की जानकारी है और नए लेबर कोड्स पर DLI पाइपर की तैयार की गई एक बहुत ही विस्तृत कानूनी रिपोर्ट भी है। इसके अलावा 1996 का जो भारी भरकम BOCW एक्ट है, यानी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अधिनियम, और साथ ही सेस अधिनियम, हम इन सब पर बात करेंगे। देखिए, हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। इस नीरस लगने वाली कानूनी और तकनीकी भाषा के जाल को काटना है और उन छिपे हुए तथ्यों को बाहर लाना है जो ये तय करते हैं कि हमारे घर बनाने वाले लोगों की सुरक्षा आखिर सुनिश्चित कैसे होती है। ये चर्चा केवल कानूनों की एक सूखी लिस्ट नहीं है। अगर आप इसे एक बड़ी तस्वीर की तरह देखें तो ये समझने की कोशिश है कि एक इंसान के रूप में इतनी खतरनाक और जानलेवा परिस्थितियों में काम करने का असल मतलब होता क्या है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब हर एक नियम के पीछे किसी इंसान की गरिमा और इसके जीवन का मूल्य छिपा है। बिल्कुल। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उस पुल की बात करते हैं जो पुराने कानूनों और आने वाले नए लेबर कोड्स के बीच बन रहा है। मैंने DLA पाइपर की जो रिपोर्ट पढ़ी, वो इस ट्रांजिशन पीरियड को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, क्योंकि जब भी कोई नया कानून आता है ना, तो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। हाँ, कि अब क्या लागू होगा और क्या नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट में एकदम साफ कर दिया गया है कि नए लेबर कोड्स के आने का मतलब ये नहीं है कि अचानक से सब कुछ शून्य हो जाएगा। सही बात है। रिपोर्ट बताती है कि जब तक राज्य सरकारें इन नए लेबर कोड्स को पूरी तरह से लागू करने के लिए नए नियम नोटिफाई नहीं कर देती, तब तक पुराने नियम लागू रहेंगे। बशर्त ये है कि वो नए कोड से टकराने नहीं चाहिए। मतलब सुरक्षा का कोई भी पहिया अचानक रुकने वाला नहीं है। और इसी कानूनी निरंतरता के बीच 1996 के एक्ट से जो सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आता है, वो है बिल्डिंग वर्कर की परिभाषा। ये सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, आमतौर पर कोई भी यही सोचेगा कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी मौजूद है वो वर्कर है। कानून कहता भी है कि कोई भी व्यक्ति जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड काम करता है वो इस परिभाषा में आता है।
लेकिन पेच वहां फंसता है जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को देखते हैं। जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं। हाँ, जो व्यक्ति मुख्य रूप से मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता में काम कर रहा है वो इस परिभाषा से पूरी तरह बाहर है। और यहीं पर मैंने उस अधिनियम में एक ऐसा आंकड़ा देखा जो आज के समय के हिसाब से किसी को भी चौंका सकता है। आप 1600 रुपए वाले नियम की बात कर रही है ना? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति साइट पर सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा है और उसकी तनख्वाह महीने के 1600 रुपए से ज्यादा है तो उसे कानूनी तौर पर बिल्डिंग वर्कर नहीं माना जाएगा। मतलब 1600 रुपए आज के समय में शायद एक मजदूर की कुछ ही दिनों की दिहाड़ी होती है। हाँ, पर हमें ये याद रखना होगा कि ये 1996 का आंकड़ा है। उस समय के आर्थिक दौर में शायद 1600 रुपए एक सुपरवाइजर के लिए बहुत बड़ी रकम रही होगी, लेकिन आज के संदर्भ में इसका मतलब ये है कि लगभग हर सुपरवाइजर तकनीकी रूप से इस कानून के सुरक्षा दायरे से बाहर हो जाता है। ये तो है। इसके साथ ही एक और बुनियादी नियम है रजिस्ट्रेशन का। कानून हर एम्प्लॉयर या ठेकेदार को ऐसे ही काम शुरू करने की छूट नहीं देता। उन्हें काम शुरू होने के 60 दिन के भीतर अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। मतलब जवाबदेही पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल। बिना रजिस्ट्रेशन के आप कानूनी तौर पर किसी से निर्माण कार्य करवा ही नहीं सकते। तो अब इस कानूनी ढांचे के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो लोगों के लिए एक रहस्य रहता है। माई स्कीम जैसी वेबसाइट्स पर हमने देखा है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, गंभीर बीमारियों के लिए लाखों की मदद मिल रही है। सवाल ये आता है कि इन सारी विशाल कल्याणकारी योजनाओं के लिए इतना भारी भरकम पैसा आखिर आता कहां से है? इसके पीछे का जो विज्ञान है वो 1996 के सेस अधिनियम में बहुत बारीकी से पिरोया गया है। इसे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का आर्थिक इंजन कह सकते हैं। सरकार ने स्टेट वेलफेयर बोर्ड बनाए हैं। अब इनको चलाने के लिए फंड तो चाहिए, तो कानून ये तय करता है कि किसी भी निर्माण कार्य की कुल लागत पर 1% से लेकर अधिकतम 2% तक का सेस या उपकर लगाया जाएगा। और भारत जैसे देश में जहां रोज हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां ये 1 या 2% जुड़कर एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है। हाँ, लेकिन इसमें एक कानूनी पेंच है। जब हम निर्माण की कुल लागत कहते हैं तो उसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं होती। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई बिल्डर दिल्ली या मुंबई में बिल्डिंग बना रहा है तो वहां तो जमीन ही सैकड़ों करोड़ की होती है। बिल्कुल। अगर उस पर सेस लगने लगा तो प्रोजेक्ट ही ठप हो जाएंगे। सही कहा। इसीलिए जमीन की कीमत और अगर वर्कर को कोई मुआवजा दिया गया है तो उसे इस लागत से बाहर रखा जाता है। सेस सिर्फ उसी चीज पर लगता है जो असल निर्माण है, जैसे ईंट, स्टील और श्रमिक की मेहनत। और इस पूरी वित्तीय व्यवस्था में जो सबसे अहम सुरक्षा चक्र है, मुझे ये दस्तावेजों में एक बहुत बड़े आहा मोमेंट की तरह लगा। अक्सर लोग कहते हैं कि सरकारी फंड्स तो अधिकारियों के दफ्तर और गाड़ियों में ही खर्च हो जाते हैं। हाँ, ये आम शिकायत है। लेकिन जब ये करोड़ों रुपए का सेस स्टेट वेलफेयर बोर्ड के पास पहुंचता है तो कानून एक बहुत ही सख्त लक्ष्मण रेखा खींच देता है। वो 5% वाली लिमिट? एकदम सही। बोर्ड अपने कुल खर्च का 5% से ज्यादा हिस्सा किसी भी हाल में एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पर खर्च नहीं कर सकता। इसका मतलब अधिकारियों की सैलरी, ऑफिस का रखरखाव, कागजी कार्यवाही, ये सब उसी 5% के अंदर होना चाहिए। हाँ, और बाकी का जो 95% से अधिक हिस्सा है वो सीधे तौर पर श्रमिकों के कल्याण पर ही खर्च होना अनिवार्य है। ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है जो उस पैसे को नौकरशाही की भेंट चढ़ने से रोकता है। बिल्कुल। चलिए अब इन कागजों और फंड्स की दुनिया से निकलकर सीधे कंस्ट्रक्शन साइट की उस जमीन पर चलते हैं जहां असल में काम हो रहा है। हाँ, जहां धूल, क्रेन और बहुत सारा शोर होता है। बाहर से देखने पर यह एक अस्त व्यस्त इलाका लगता है, लेकिन 1998 के केंद्रीय नियमों के भीतर जो वैज्ञानिक विवरण मौजूद हैं वो बताते हैं कि साइट का हर कोना एक सख्त विज्ञान से चलता है। सबसे पहले आवाज की ही बात करते हैं। आवाज को लेकर जो नियम है वे सच में हैरान करते हैं। हमें लगता है कि साइट है तो शोर तो होगा ही। बिल्कुल, पर कानून कहता है कि एक 8 घंटे की सामान्य शिफ्ट के लिए शोर की अधिकतम सीमा 90 dBA तय की गई है। और मैंने पढ़ा कि किसी भी हालत में, मतलब किसी भी असाधारण परिस्थिति में भी 115 dBA से अधिक शोर की अनुमति तो है ही नहीं। 115 dBA का मतलब है किसी जेट इंजन के पास खड़े होना। हाँ, कानून ने इंसानी कान के पर्दों की शारीरिक क्षमता को मापा है। इससे आगे जाना सीधे तौर पर शरीर को डैमेज करना है। बाप रे। और शोर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा साइट पर मंडराता है वो है हवा में लटकता हुआ भारी वजन। वो जो विशाल क्रेन्स होती हैं। हाँ, उनके लिए सेफ वर्किंग लोड के कड़े नियम है। हर क्रेन और लिफ्टिंग गियर की हर 5 साल में टेस्टिंग होना अनिवार्य है। और सिर्फ टेस्टिंग नहीं बल्कि एक लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम भी जरूरी है। हर क्रेन में एक ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ, जैसे ही ऑपरेटर सुरक्षित सीमा से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करता है तो ये इंडिकेटर अलार्म बजा देता है कि काम तुरंत रोक दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन इस आसमान में लटकते वजन से अगर हम सीधे जमीन के नीचे पाताल की गहराई में जाएं तो वहां का विज्ञान और भी जटिल हो जाता है। आप टनलिंग और कंप्रेस्ड एयर वाले काम की बात कर रहे हैं ना? हाँ,
जब मेट्रो की लाइनें जमीन के बहुत नीचे बिछाई जाती हैं तो पानी और मिट्टी को अंदर आने से रोकने के लिए सुरंग में हवा का दबाव बढ़ा दिया जाता है। इस उच्च दबाव में मजदूरों के खून में नाइट्रोजन गैस घुल जाती है। और असली खतरा तब शुरू होता है जब वे काम खत्म करके वापस सतह की ओर लौटते हैं। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगा। हाँ, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। अगर वो मजदूर अचानक से सामान्य हवा में आ जाए तो उसके खून में घुली हुई गैस अचानक से बुलबुले बन जाएंगी, जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हिलाकर खोल देना। बिल्कुल सही उदाहरण है। इससे डीकम्प्रेशन सिकनेस या बेंड्स नाम की जानलेवा स्थिति हो जाती है, जिससे लकवा मार सकता है या जान भी जा सकती है। और इसी भयानक स्थिति से बचाने के लिए कानून मैनलॉक और मेडिकल लॉक को अनिवार्य बनाता है। मैनलॉक एक बड़ा लोहे का चेंबर होता है। मजदूर सीधे बाहर नहीं आ सकते, उन्हें इस चेंबर में बैठना होता है जहां हवा का दबाव बहुत धीरे धीरे कम किया जाता है। डीकम्प्रेशन की प्रक्रिया लगी वो ये थी कि डीकम्प्रेशन के बाद भी मजदूर तुरंत घर नहीं जा सकता। 1998 के नियम कहते हैं कि अगर वो एक बार से अधिक दबाव वाले वातावरण से बाहर आता है तो उसे कम से कम 1 घंटे तक साइट पर ही रेस्ट शेल्टर में आराम करना होता है। और अगर तबीयत खराब हो जाए तो मेडिकल लॉक का भी प्रावधान है, जहां वापस दबाव बढ़ाकर धीरे धीरे इलाज होता है। ये सच में दिखाता है कि मेडिकल साइंस को कानून में कितने गहराई से पिरोया गया है। बिल्कुल। अब अगर इन चरम परिस्थितियों से हटकर साइट की रोजमर्रा की सुविधाओं पर आए तो वहां भी मजदूरों के शोषण को रोकने की पूरी कोशिश है, जैसे ओवरटाइम का नियम। हाँ, अगर कोई तय घंटों से ज्यादा काम करता है तो उसे अपनी सामान्य दर से 2 गुना वेतन मिलना चाहिए। ये अतिरिक्त शारीरिक तनाव की कीमत है। और इसी से जुड़ा कैंटीन का नियम भी है। मुझे लगा था कि कैंटीन तो बस खाना खिलाने के लिए होगी, लेकिन ये असल में एक बहुत मजबूत आर्थिक सुरक्षा है। वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला नियम। हाँ, कानून कहता है कि जिस साइट पर 250 से ज्यादा मजदूर हों वहां कैंटीन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ठेकेदार खाने की कीमत में अपनी जमीन का किराया, फर्नीचर का खर्च या बर्तनों की टूट फूट नहीं जोड़ सकता। मतलब मजदूर को सिर्फ दाल चावल की कच्ची कीमत चुकानी है, ठेकेदार उसकी भूख से मुनाफा नहीं कमा सकता। एकदम सही। इसके अलावा जहां 500 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हों वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बढ़ जाता है। वहां प्रॉपर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर, एक एम्बुलेंस रूम और एक कंस्ट्रक्शन मेडिकल ऑफिसर का होना अनिवार्य है। और ये सिर्फ चोटों के लिए नहीं है, बल्कि सालों तक धूल और रसायनों में काम करने से जो सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस जैसी व्यावसायिक बीमारियां होती हैं, उनके लिए भी है। हाँ, अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत बोर्ड को नोटिस दे। इसे साइट पर छुपाया नहीं जा सकता। देखिए, ये सारे नियम कागज पर तो बहुत बेहतरीन नजर आते हैं, लेकिन अब सबसे व्यावहारिक और तीखे सवाल पर आते हैं। बताइए। अगर कोई करोड़पति बिल्डर इतने बड़े प्रोजेक्ट में इन नियमों को तोड़ता है तो कानून के हाथ असल में कितने लंबे हैं? 1996 की एक्ट में सजा का जो प्रावधान है वो मुझे थोड़ा निराश करने वाला लगा। आप 2000 रुपए वाले जुर्माने की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब नियम तोड़ने पर 3 महीने की कैद या 2000 रुपए का जुर्माना। आज के समय में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट में एक बिल्डर के लिए 2000 रुपए तो शायद उसकी गाड़ी के 1 दिन के पेट्रोल से भी कम है। ये बहुत ही वाजिब विश्लेषण है। 2000 रुपए बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर केवल इस जुर्माने के भरोसे नहीं बैठते। इस अधिनियम का जो असली हथियार है वो है सेक्शन 53, जो कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से जुड़ा है। तो मतलब बड़े अधिकारी भी फंस सकते हैं। बिल्कुल। जब कोई कंपनी नियम तोड़ती है तो कानून सिर्फ साइट के किसी छोटे फोरमैन को बलि का बकरा नहीं बनाता। ये धारा सीधे कंपनी के बोर्ड रूम तक जाती है। सेक्शन 53 कहता है कि कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी भी समान रूप से दोषी माने जाएंगे। अरे वाह। हाँ, अगर साइट पर मैनलॉक नहीं बना है तो वो एसी केबिन में बैठकर ये नहीं कह सकते कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। वे तभी बच सकते हैं जब वो अदालत में साबित करें कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से ड्यू डिलिजेंस बरती थी। और ये साबित करना आसान नहीं है, मतलब मैनेजमेंट पे सीधा दबाव है। बिल्कुल। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये समझ आता है कि 1996 के अधिनियम से लेकर आज के नए लेबर कोड्स तक ये जो कानूनी पन्ने हैं ये केवल कागजी कार्यवाही नहीं है। ये पसीने, मेहनत और खून से लिखे गए वो सुरक्षा कवच हैं जो देश का बुनियादी ढांचा बनाने वालों की रक्षा करते हैं। सही कहा। पैसे का विज्ञान जो 1% सेस के रूप में आता है, या सेफ वर्किंग लोड का अलार्म, ये सब इंसान की जान की कीमत को इमारत की कीमत से ऊपर रखते हैं। बिल्कुल। आज के बाद जब भी श्रोता किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या गहरी टनल को देखेंगे तो उन्हें सिर्फ सीमेंट और लोहा नहीं, बल्कि वो मैनलॉक का दबाव और कैंटीन का मानवीय पहलू भी साफ नजर आएगा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे जहन में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो आज के कानून से निकलकर भविष्य की दुनिया में झांकता है। वो भविष्य का सवाल क्या है? अगर आप ध्यान दें तो ये सारे नियम, चाहे वो 115 डीबीए का शोर हो या टनल का दबाव हो, ये इंसानी शरीर की सीमाओं को सोचकर बनाए गए हैं। बिल्कुल। मानव शरीर विज्ञान पर आधारित है। लेकिन आज कंस्ट्रक्शन में 3D प्रिंटिंग आ रही है, खतरनाक कामों के लिए रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जरा सोचिए, जब ये भारी और खतरनाक काम इंसान की जगह मशीनें करने लगेंगी तो इन इंसानी नियमों का क्या होगा? बहुत गहरा पॉइंट है। क्या भविष्य में बिल्डिंग वर्कर की परिभाषा में मशीनों को चलाने वाले एल्गोरिदम शामिल होंगे
और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेलफेयर बोर्ड का ये जो 1% सेस वाला मॉडल है वो इस तकनीकी क्रांति के सामने टिक पाएगा, या फिर फंड बनाए रखने के लिए मशीनों पर कोई रोबोट सेस लगाना पड़ेगा? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर दुनिया को बहुत जल्द विचार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़े गए इसी बड़े सवाल के साथ निर्माण श्रमिकों के नियमों की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।